তিহাৰ জেলৰ পৰা অহাৰ পিছতে মোদীৰ বিৰুদ্ধে সঞ্জয় সিঙৰ সিংহৰ দৰে গৰ্জন। হাতত ফটো লৈ এটাৰ পিছত আন এটা বিস্ফোৰণ সঞ্জয় সিঙৰ। কেজৰিৱালক কাৰাগাৰৰ আঁৰত ৰখাৰ এক বৃহৎ ষড়যন্ত্ৰ বিজেপিৰ। সুৰা কেলেংকাৰীৰ বাবে দায়ী বিজেপি। তিহাৰ জেলৰ পৰা অহাৰ পিছত প্ৰথমটো সংবাদমেলত সঞ্জয় সিঙে বহু বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। আম আদমী পাৰ্টিৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙে শুকুৰবাৰে এক সংবাদমেলত দাবী কৰে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত জড়িত। লগতে দিল্লী সুৰানীতি কেলেংকাৰীৰ বাবে বিজেপি দায়ী বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে। তেওঁ কয় যে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক কাৰাগাৰৰ আঁৰত ৰখাৰ বাবে চলিছে এক বৃহৎ ষড়যন্ত্ৰ। সুৰা কেলেংকাৰীৰ বাবে দায়ী বিজেপি। ইয়াৰ লগত দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃত্ব জড়িত হৈ আছে। সুৰানীতিৰ গোচৰ সন্দৰ্ভতো গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সিঙে বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ে তেওঁক মুকলি কৰি দিয়াত কোনো আপত্তি নাই বুলি কোৱাৰ পিছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জামিন মঞ্জুৰ কৰাৰ পিছত বুধবাৰে জেলৰ পৰা ওলাই আহিছিল। অৱশ্যে জামিনৰ চৰ্ত হিচাপে গোচৰটোত তেওঁৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কথা নাপাতিবলৈ আদালতে সিঙক কয়। নিজৰ দাবীৰ বিষয়ে অধিক বিশদভাৱে উল্লেখ কৰি আপ নেতাগৰাকীয়ে বিজেপি আৰু দিল্লী আবকাৰী নীতিৰ অভিযুক্ত পিতৃ অনুমোদকলৈ পৰিণত হোৱা ৰাঘৱ ৰেড্ডীৰ পিতৃ মুকুন্দা ৰেড্ডীৰ মাজত সম্পৰ্ক থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰা এখন ফটো প্ৰকাশ কৰে। সিঙে দাবী কৰে যে ৰেড্ডীয়ে 5 মাহৰ নিৰ্যাতনৰ পিছত নিজৰ বক্তব্য সলনি কৰি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা বক্তব্য দিছিল। তেওঁ কয় যে মুকুন্দা ৰেড্ডী নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে 3টা বক্তব্য দিলে। তেওঁৰ পুত্ৰ ৰাঘৱ মুকুন্দাই 7টা বক্তব্য দিলে। 16 ছেপ্টেম্বৰত যেতিয়া মুকুন্দা ৰেড্ডীক ইডিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক চিনি পায় নেকি বুলি সোধাত তেওঁ সঁচা কথা ক'লে আৰু ক'লে যে তেওঁ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক লগ পাইছিল, কিন্তু দাতব্য ট্ৰাষ্টৰ মাটিৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু তাৰ পিছতে তেওঁৰ পুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি 5 মাহ জেলত ৰাখিলে আৰু তাৰ পিছত পিতৃয়ে নিজৰ বক্তব্য সলনি কৰিলে। 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 16 জুলাইলৈ ৰাঘৱ মুকুন্দাৰ 7টা বক্তব্য লোৱা হয়। 7টা বক্তব্যৰ ভিতৰত 6টা বক্তব্যত তেওঁ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে একো কোৱা নাই যদিও 16 জুলাইৰ 7ম বক্তব্যত তেওঁৰ নিজৰ স্থিতি সলনি কৰি ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ হৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে বক্তব্য দিয়ে। 5 মাহৰ নিৰ্যাতনৰ অন্তত তেওঁ নিজৰ বক্তব্য সলনি কৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিলে। লগতে মুকুন্দা ৰেড্ডীৰ ছবিখন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে দেখুৱাই সঞ্জয় সিঙে সুৰা কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত অভিযুক্ত হোৱা লোকজনৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কি কৰিছে বুলি সংবাদ মেলযোগে প্ৰশ্ন কৰে। মুকুন্দা ৰেড্ডী এতিয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ টিডিপিৰ প্ৰাৰ্থী। ভোট বিচাৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ছবি ব্যৱহাৰ কৰিছে ৰেড্ডীয়ে, এই বুলি সঞ্জয় সিঙে কয় আৰু লগতে কয় যে ৰেড্ডীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নামত ভোট বিচাৰিছে। मुकुंदा रेड्डी जिसने कुल 7 बयान दिए, कुल 3 बयान दिए, उसके बेटे राघव मुकुंदा ने 7 बयान दिए, बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए। और इस 10 बयान को पीछे जब उनसे पहले पूछा गया, 16 सितंबर को पूछा गया, ईडी के द्वारा पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जानते हैं, तो उसने उसी बात की सच्चाई को उजागर किया। जो बात सच थी उसने कहा, हां मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मिला था। लेकिन उसके बाद उसके बेटे को, राघव मुकुंदा को गिरफ्तार किया जाता है। राघव मुकुंदा को जेल के अंदर रखा जाता है, 5 महीने तक जेल में रखा जाता है और तब वो अपना बयान बदल देता है। 16 सितंबर पर पहली बार कार्रवाई होती है मुकुंदा रेड्डी सांसद पर, रेड होती है 16 सितंबर 2022 को और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो, बयान दो, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मुकुंदा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 10 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक 7 बयान लिए जाते हैं। राघव मुकुंदा के
मंगुंटा रेड्डी सांसद के बेटे राघव मंगुंटा के कितने बयान? 7 बयान। 3 बयान बाप का, 7 बयान बेटे का। और उन 5 महीनों में जो 7 बयान वो देता है, उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में अरविंद केजरीवाल को जानते हो? अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है? अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है। और 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है और वो बदल जाता है। वो वही साजिश का हिस्सा बन जाता है। 5 महीने के प्रताड़ना के बाद बदल जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। लेकिन हैरानी की बात सबसे ज्यादा यह है कि ये 6 बयान और बाप के 2 बयान गायब कर दिए जाते हैं। 5 महीने की जेल के दौरान दिए गए बयान, ईडी कहती है इस पर हमें भरोसा नहीं है और उसको रख लिया अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स। यानी ऐसा बयान जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं था, उस पर की ईडी ने कहा हमें इस पे भरोसा नहीं है। हमारे वकीलों ने अदालत में पैरवी की, बार बार कहा हमें देखना है वो बयान जो उसने अपनी गिरफ्तारी के दौरान दिया। और जब हमारे वकीलों को कोर्ट ने आदेश दिया जाओ और देखो वो सारे बयान, उनके होश उड़ गए। आपको पता है उनके होश उड़ गए। बाप बेटे के 9 बयानों में कहीं भी अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं। और बाद में अरविंद केजरीवाल का नाम उससे जबरन दबाव बनाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उससे बयान दिलवाया जाता है। अब ये मंगुंटा रेड्डी और राघव मंगुंटा है कौन, जिसको ईडी ने कहा कि यह शराब का कारोबारी है, शराब का घोटालेबाज है, इसके हम छापा मारेंगे। 16 सितंबर को छापा मारा। मैं चाहूंगा ये तस्वीर आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गलबहियां करते हुए, उनसे मिलते हुए ये तस्वीर आप जरूर देखिए। ये है मंगुंटा रेड्डी सांसद, जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। यह है मंगुंटा रेड्डी जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। 16 जुलाई जब यह हमारे खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और के खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की भाजपा की साजिश में शामिल हो जाता है, तो 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है। 18 जुलाई को इसकी जमानत हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं इतनी बड़ी साजिश। एक आदमी जिसको खुद ईडी कह रही है ये शराब का घोटालेबाज है, शराब का घोटालेबाज है, उसका क्या रिश्ता है भारत के प्रधानमंत्री के साथ? और इतना ही नहीं, आज की तारीख में वो टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है। मैं चाहता हूं वो भी आप दिखाइए। ये देखिए आप, इसको टीडीपी का टिकट मिला हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहा है। जिसको भाजपा कहती है घोटालेबाज है ये, जिसको कहती है ईडी कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे,
हम इसको गिरफ्तार करेंगे, हम इसको जेल में डालेंगे। जब उसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है भारत के लोकतंत्र में। यह इस केस की सच्चाई देश के लोगों जान लो। आपके नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो व्यक्ति बयान देता है यह है, और जो बयान छिपा लिया जाता है ईडी के द्वारा हमारे वकीलों के दबाव में, कोर्ट के आदेश के बाद जब वो बयान देखते हैं जाकर ईडी के दफ्तर पर, जिसको अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में ईडी ने रखा है, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे भरोसा नहीं है, शुरुआती सारे बयान जिस पे भरोसा नहीं है, वो बयान जो उसने सही सही बताया था उस पर कह दिया हम इस पे भरोसा नहीं, उसको छुपा लिया। बोले छुप जाओ बेटा। अब इसमें एक और ये है मंगुंटा रेड्डी सांसद, और ये है भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीर, और ये है वो चुनाव प्रचार कर रहा है, टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है, और ये है भारत का प्रधानमंत्री। इस फोटो में सबसे ऊपर उनकी तस्वीर है। वोट मांग रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे हमको वोट दे दीजिए। अब मैं आता हूं कि शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने कैसे किया। अब एक शख्स आता है शराब का कारोबारी, जिसको कहती है भारतीय जनता पार्टी घोटालेबाज है, घोटालेबाज है, घोटालेबाज है, शरद रेड्डी। शरद रेड्डी के घर पे 9 नवंबर को छापा होता है 2022 में। 9 नवंबर 2022 को छापा होता है, और 9 नवंबर 2000 छापे के बाद इससे पूछा जाता है केजरीवाल जी के बारे में। ये साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैं अरविंद केजरीवाल को जानता ही नहीं, उनसे मिला नहीं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। और इसके कुल 12 बयान होते हैं, 12 बयान। ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश करके उनको गिरफ्तार किया गया। 9 नवंबर से लेकर इससे पूछताछ के दौरान इसको जो भी दबाव बनाया गया, इसने मना किया। फिर इसकी 10 नवंबर को गिरफ्तारी हो जाती है। 10 नवंबर को गिरफ्तारी हो जाती है, और 10 नवंबर की गिरफ्तारी के बाद इसने कुल 25 अप्रैल तक, यानी कि 6 महीने इसको जेल में रखा गया। इससे बार बार कहा गया बयान दो केजरीवाल के खिलाफ, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ, इसने नहीं दिया। 12 बयान इसने कुल दिया, और 6 महीने के बाद जब इससे कहा गया बयान दो वरना जिंदगी जेल में सड़ जाएगी, बयान दो वरना जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। अब वो कोई संजय सिंह तो है नहीं, वो शरद रेड्डी है, टूट गया। 25 अप्रैल को उसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया। अब हमारे वकील फिर परेशान हुए कि जिस व्यक्ति ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया उसके 10 बयान को अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में ईडी ने क्यों डाल दिया। उन्होंने फिर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, जांच के आदेश मिले, हमारे वकील गए, उन्होंने देखा, ईडी के दफ्तर में जांच के आदेश मिले, वकील गए, उन्होंने देखा, सारे 10 के 10 बयान पढ़े, वकीलों के होश उड़ गए। 10 बयानों में केजरीवाल का नाम नहीं, और 10 बयान जो केजरीवाल का जो के खिलाफ नहीं थे उस पे ईडी ने कहा इस पे भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, भरोसा नहीं।
और जैसे ही उसने 25 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया, उसकी बेल हो जाती है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट नाउ।